Hello students, this is part 5 NCERT textual numericals. We are continue with our series and this is our part 5 students, and we are doing chapter 3 motion in a straight line. This is class 11 physics students, welcome here, and we are continuing with our question number 16 C part. First of all, I want to say thanks to all my students and all my near and dear for supporting me and for your a lot of love. Okay, I am trying to do my best to help you in every part of physics, that is maybe theoretical part or it may be numerical part. So students, now we are doing our part C. And you know that very well, this is graphical question, and in that question we are discussing the according to graph, that is we want to tell you this is the 1D motion or not. So students, in our part C, the graph is given like that. This is 2D, this represent time and this represent speed. Okay, speed. And students, this is the condition that is given to us, and we already know that this is not a path. बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राफ हमें क्या बता रहा है. अब देखो बेटा, ये भी हमें 1D मोशन नहीं बताता है, ये भी हमें 1D मोशन फॉलो नहीं करा रहा है. क्यों नहीं करा रहा है? बिकॉज आप कोई भी कंडीशन कंसिडर कर लो. सबसे पहली बात तो ये है कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने स्पीड को नेगेटिव बना रखा है, विच इज नॉट पॉसिबल. थ्योरेटिकल क्या लिखोगे? इट टेल अस दिस इज नॉट 1D मोशन because according to graph which is given in the book, okay, the particle have negative speed. The particle have negative speed. ठीक है, पार्टिकल की क्या है बेटा? नेगेटिव स्पीड है, which is not possible in 1D motion, which is not possible. ठीक है, which never possible. स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है. Now we are doing our part D, and in part D the question is like that. Okay, this is our total path length. Total path length, that is you can say this is our distance and this is the time. Okay, and this is the graph that is given to us, and from here you can see students, at suppose this is time 0, and at here the time is suppose 10, 20, time is going like that beta. But you can see when the time is increasing, then the path length is also increasing. But after time, sometime after 10, the path length is decreasing. Or at this time, the path length becomes 0. Path length become 0, which is not possible. Path length means क्या होता है? Which are having only magnitude. एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है ही नहीं, तो पाथ लेंथ कभी भी 0 नहीं हो सकता. सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट 1D मोशन. ये भी 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्राफ टोटल पाथ लेंथ डिक्रीज आफ्टर सर्टेन टाइम. अकॉर्डिंग टू ग्राफ टोटल पाथ लेंथ डिक्रीज आफ्टर सम टाइम. डिक्रीज टोटल पाथ लेंथ क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी है. ठीक है, टोटल पाथ लेंथ डिक्रीज आफ्टर सर्टेन टाइम. ओके, बट टोटल पाथ लेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल नेवर डिक्रीज. बट वी नो टोटल पाथ लेंथ नेवर डिक्रीज. Okay, so
नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 17. So what the question number 17 saying to us? This is also a graphical question. On your screen you can see the question number 17. Here is a xt graph plot of 1D motion of a particle. एक किसी भी पार्टिकल के 1D मोशन को शो कर रहा है. ओके, एंड xt ग्राफ है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो किसको शो करेगा, वो आपका शो करेगा वेलोसिटी को. ठीक है बेटा. सो कह क्या रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इट इज करेक्ट टू शेयर फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन. क्या हम पार्टिकल को देख के, जो ग्राफ है उसको देख के कह सकते हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अगर टाइम लेस देन 0 है, या पैराबोलिक अगर टाइम ग्रेटर देन 0 हो, तो हमें ग्राफ को देख के ही पता चलेगा. इफ नॉट सजेस्ट सुटेबल, और हमें कोई इसके रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल बताना है कि जो ये ग्राफ बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग कौन सा एग्जाम्पल इसको सूट करता है. चलो स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व करते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. ओके बेटा. सो ग्राफ इज सेइंग दिस इज टाइम लाइन एक्सिस एंड दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस. Here the center, suppose origin, here t is less than 0 and here t is greater than 0. Standardly I will tell you students, टाइम कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, बट एज ए ओरिजिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लो हमारा यहाँ पे टाइम 0 है तो इधर वाला टाइम 0 से कम होगा और इधर वाला टाइम 0 से ज़्यादा होगा. इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पर हमारे 10 बजे है ओरिजिन के ऊपर, तो मैं कहूँगी 10 से पहले वाला जो टाइम है 9, 8, 7 वो क्या रहेगा आपका नेगेटिव में ले लेंगे हम इधर वाले एक्सिस पे, और इधर वाला टाइम को हम क्या ले लेंगे पॉजिटिव. ऐसे रियलिटी में ये नहीं होता है बेटा, ध्यान रखोगे आप. अब क्या कह रहे हैं, नो दिस इज नॉट 1D मोशन. क्यों नहीं है? बिकॉज द xt ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ. ये बेटा आपको ध्यान रखना है, जो xt ग्राफ है ये जो बन रहा है इसकी ट्रेजेक्टरी को शो नहीं करता है. ओके, डज नॉट इट, बिकॉज xt ग्राफ तो उसकी वेलोसिटी को शो करता है. ओके, ये उसकी ट्रेजेक्टरी को, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ. xt ग्राफ डज नॉट शो ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी का मतलब जो पाथ को फॉलो करता है, ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ फॉलो बाय पार्टिकल, फॉलो बाय पार्टिकल. ओके, ये क्या कह रहा है कि ग्राफ कभी भी मतलब इस साइड को नहीं दिखाता कि वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है. वो ये होता है कि किस टाइम पे क्या सिचुएशंस रही है उसी के हिसाब से हमारा ग्राफ बनता है. ओके, तो ये आप देख सकते हो जब टाइम 0 है तब हमारा एक्स भी क्या उस टाइम पे 0 है. तो ये क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओगे जिसमें बॉडी मतलब पहले रेस्ट में या फिर एकदम से एक्सेलरेट कर जाए, एकदम से स्पीड बढ़ जाए. तो आप ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे कि पेन है, कोई भी ऐसी बॉडी ऊपर से नीचे गिरा दो उस बॉडी को. ठीक है, मान लो मैंने कोई फुटबॉल ले ली, फुटबॉल को पहले हाथ में रखा, थोड़ी देर रेस्ट में रही, फिर मैं इसको ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, तो बॉडी एकदम से एक्सेलरेट करेगी. तो आप एक एग्जाम्पल लिख दो इसका, कोई भी कॉन्टेक्स्ट लिख दो. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए बॉल फॉल फ्रॉम ए हाइट फ्रीली. ए फुटबॉल fall freely from a height. किसी भी हाइट से अगर कोई बॉल फ्रीली फॉल करती है तो हम कह सकते हैं कि वो ऐसे मोशन को फॉलो करेगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन बेटा. ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. एक पुलिस की गाड़ी है, हाईवे पे चल रही है और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. जो पुलिस की गाड़ी है उसकी स्पीड इतनी है बेटा. ठीक है, और उसके बाद आपका क्या कह रहा है नेक्स्ट में इसमें ये कि वो जो उसकी स्पीड हो गई बेटा. चलो ठीक है, अब वो एक बुलेट, एक मतलब एक चोर की गाड़ी भी है, उस पर गोली चलाता है पुलिस वाला अवे इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, और जो उसकी स्पीड है ना वो है 192 किलोमीटर पर आवर. उसकी स्पीड क्या है 192 किलोमीटर पर आवर है. ओके, अब क्या राइट द मजल. मजल आप जैसे नेट में सर्च भी कर सकते हो. मजल मतलब बेटा मैं आपको बताऊं तो जो बुलेट होती है ना, गोली जो होती है, गोली के आगे वाला पार्ट होता है इसको, बिल्कुल उसका जो मुंह पे पार्ट से गोली निकलती है उसको मजल बोलते हैं. ठीक है, इफ द मजल स्पीड ऑफ द प्लेट इज 150 मीटर सेकेंड. मजल की जो स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड है. क्योंकि जब मान लो आप गाड़ी में बैठे बैठे गोली चलाओगे
तो फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि आपकी बुलेट की स्पीड में आपकी गाड़ी की स्पीड भी ऐड होगी, तो आपको काफ़ी फास्ट चलेगी, वो फील होगी मतलब आपको। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस स्पीड के साथ बुलेट थिप की कार को हीट करेगी। ओके, और आपको ये नोट डाउन करना है कि स्पीड इन विच रेलिवेंट टू द डैमेजिंग ऑफ द कार, कि वो मतलब कार की डैमेज भी कर देगी। चलो अब हम करते हैं बेटा इसको। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इसको करते हैं। सो आई एम सेइंग स्पीड ऑफ पुलिस वैन, जो पुलिस की गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है। पुलिस की गाड़ी की स्पीड को हम वीपी कंसीडर कर लेते हैं, पुलिस वाली गाड़ी की, और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ थिफ कार, जो चोर की गाड़ी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थिफ को टी से, वो कितनी दे रखी है 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो मजल स्पीड ऑफ बुलेट है, ठीक है, मजल स्पीड ऑफ बुलेट इसको आप एक तरीके से ये कह सकते हो बेटा कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद पुलिस। ठीक है, पुलिस वैन के साथ उसकी वेलोसिटी, ये इसको हमने रिप्रेजेंट किया, मान लो छोटी सी वीबी से। ओके, और ये हमारे पास कितनी दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड दे रखी है। 50 इंटू 18/5, तो 5 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा 540 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है स्पीड ऑफ थिफ कार, तो बुलेट इज शेयरिंग द वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, जो बुलेट है वो पुलिस वैन की वेलोसिटी को भी शेयर कर रही है। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो बुलेट की टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, खुद की तो है प्लस में गाड़ी की भी ऐड हो जाएगी ना उसके अंदर। ठीक है, टोटल वेलोसिटी शेयरिंग बाय बुलेट, शेयरिंग विद वैन, गाड़ी के साथ, तो वो हो जाएगी बुलेट की वेलोसिटी प्लस में पुलिस वाले की वेलोसिटी। टोटल कितना हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 540 प्लस 30, ये हो जाएगी 570 किलोमीटर पर आवर। ओके, द स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिफ कार। अब हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिफ कार, जो चोर की गाड़ी है उसके रिस्पेक्ट में मूविंग इन सेम डायरेक्शन। देखो बेटा, मैंने बोला जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो और सेम डायरेक्शन में निकालनी हो तो हमेशा ऐसे सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या कर देंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे VBT, यानी कि VB माइनस VT। VB हमारे पास कितना दे रखा है 570, VT कितना है 192, कितना हो जाएगा आपका 378 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको इसको मीटर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 21 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा, दिस इज ऑन योर स्क्रीन। इन फिगर, जो भी हमारे पास फिगर अवेलेबल हैं उनको हमें देख के बताना है। सजेस्ट सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं और उनको देख के हमें ये बताना है कि उनकी क्या मतलब फिजिकल सिचुएशंस रहेंगी या क्या रही होंगी, उनके हिसाब से हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या फिगर्स हैं, तीन फिगर है, तीनों फिगर की सिचुएशंस हम देखेंगे, उसके बिहाफ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट फिगर है आपका। फर्स्ट फिगर क्या कह रहा है, फर्स्ट फिगर आपको ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, ये नीचे आ रहा है और एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब इस ग्राफ्स के अकॉर्डिंग आप देखो तो एक्सटी ग्राफ शोज दैट इनिशियली एक्स, सो स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे देखो इनिशियली जो इनिशियल एक्स है, एक्स आई है, वो क्या है हमारा
जीरो है, स्टार्टिंग एक्स हमारा जीरो है। ओके, दैट इज बॉडी एट रेस्ट। फर्स्ट में बॉडी किसमें है, रेस्ट में सबसे पहले। देन इट इंक्रीज विथ टाइम, धीरे धीरे वो क्या होती है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। अटेन ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, देन इट बिकम कॉन्स्टेंट। ओके, देन इट डिक्रीज, अगेन इट रिड्यूस टू जीरो। ओके, देन इट अगेन इंक्रीजिंग बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके बेटा, फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। देन इट इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन टिल इट अगेन अटेन, एक कब तक होगी, जब तक वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को अटेन ना कर ले। ओके, सो अगेन इट कम्स टू रेस्ट। तो दिस सिमिलर सिचुएशन अराइज, ये सिचुएशंस कब होती हैं, देखो बेटा, जब आपके पास कोई भी बॉडी है रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर। मान लो आपके पास कोई बॉल है या कोई पेन है, स्मूथली रेस्ट कर रहा है, आपने उसको किक किया, ठीक है। किक करने के बाद वो किसी भी, मान लो किसी भी बॉल से या किसी भी चीज़ से हीट हुई और वो वापस आई, ठीक है, और अगेंस्ट द फ्लोर के खिलाफ। तो जो ये सिचुएशंस होती है ना बेटा, वो किसको शो करती है, हमारी ऐसी कंडीशन को शो करती है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब हो सकती है हमारी, व्हेन ए बॉल इज इन रेस्ट, ओके, ऑन ए फ्लोर। किसी भी फ्लोर, मान ली कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, जब उसको हम किक करते हैं, व्हेन इट किक, जब इसको हम किक करते हैं, देन इट रिबाउंड, वापस आएगी फ्रॉम ए वॉल, किसी भी वॉल से, विद रिड्यूस्ड स्पीड, कम वेलोसिटी के साथ वापस आएगी ना, with reduced speed. Okay, then it move in opposite to wall, then it move opposite, फिर से अपोजिट मूव करेगी वापस। और हमने अपने घर पे ये एग्जाम्पल काफ़ी बार करे भी, हम घर पे वैसे भी खेलते ही रहते हैं बॉल्स के साथ, तब बहुत होता है ये हमारा। ओके, एंड कम एट रेस्ट, फिर वो फाइनली किसमें आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ओके, अब देखो बेटा सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड ग्राफ हमारे पास क्या है। नाउ दिस इज द पार्ट ए एंड नाउ वी आर डूइंग द पार्ट बी। पार्ट बी का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है बेटा, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास एक्स ग्राफ है, और ये हमें कुछ सिचुएशंस ऐसे दी हुई है, जो भी दिया उसके हिसाब से देखेंगे कि कहाँ क्या अप्लाई होता है। ओके, ये दिया हुआ है। अब देखो बेटा जो फिगर है उसके हिसाब से देखो, तो वेलोसिटी, अब वीटी ग्राफ है, ग्राफ कौन सा है, वीटी, ये वेलोसिटी टाइम के एक्सेलरेशन को शो करेगा। यहाँ पे हमारा टाइम नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। अब द वेलोसिटी चेंज साइन अगेन एंड अगेन विद पैसेज ऑफ टाइम। देखो आप देखो जो वेलोसिटी है ना वो कंटिन्यू अपने साइन चेंज कर रही है, एंड एवरी टाइम सम स्पीड इज लॉस्ट, धीरे धीरे देखो उस पहले सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, फिर धीरे वेलोसिटी और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। तो आप ये भी देख रहे हो कि धीरे धीरे ना वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, क्लियर, और अपनी वेलोसिटी साइन भी चेंज करती जा रही है। ओके, तो सिमिलर फिजिकल कंडीशन, ऐसी कंडीशन कब अराइव होगी, कब होगी, ठीक है, कब होगी, मैंने बॉल इज थ्रोन अप विद सम वेलोसिटी, अगर किसी बॉल को हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, ये रिटर्न बैक वापस आती है एंड इट फॉल्स फ्रीली, ठीक है, फिर ये फर्श पे गिरेगी। ओके, एंड इट रिबाउंड विद रिड्यूस स्पीड ईच टाइम इट स्ट्राइक अगेंस्ट द फ्लोर, और बार बार वो फर्श पे उछलते से कि हम किसी बॉल को ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो वैसे देखो जैसे, अब तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है बिकॉज इसमें इलास्टिसिटी नहीं है इस पैन में। अगर मैं नॉर्मली किसी बॉल को ऐसे छोड़ती हूँ ना, तो वो धीरे धीरे ऐसे उछलती ही रहती है। ओके, तो उस कंडीशन में सिचुएशन हो सकती है। तो कब हो सकती है, व्हेन ए बॉल ओके थ्रो विद सम वेलोसिटी, फेंकते हैं हम जब किसी वेलोसिटी विद सम वेलोसिटी, ओके, किसी वेलोसिटी के साथ फेंकोगे आप उसको, रिटर्न बैक, ओके, वापस आएगी एंड रिटर्न बैक एंड फॉल्स फ्रीली, और फ्रीली गिरेगी। ओके, और स्ट्राइकिंग द फ्लोर इट रिबाउंड विद रिड्यूस्ड स्पीड ऑन
जब फर्श पे स्ट्राइक करेगी, द फ्लोर, फर्श पे जब वो गिरेगी, स्ट्राइक करेगी, इट रिड्यूस, तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस, घट जाएगी, स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी उसकी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड रीबाउंड विद रिड्यूस स्पीड ईच टाइम, एंड इसी स्पीड के साथ वो बार बार क्या करती रहेगी, रिबाउंड विद रिड्यूस स्पीड, मतलब धीरे 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 ऐसे करते 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 तो फाइनली वो रुक जाएगी विद टाइम, जो भी उसे टाइम लगे, टाइम भी घटता चला जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट द फ्लोर। तो काफ़ी नॉर्मल सिचुएशन इसमें कंसिडर करी हुई है बेटा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा, लेट्स सी। इसके बाद हमारा इसका ही क्वेश्चन नंबर 619 का पार्ट सी। इसमें क्या दिया हुआ, हमें कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ये कोई बॉडी है और वो यहाँ से ग्रो करती है और फिर वो ऐसे, ठीक है, ये टाइम है और ये 80, तो 80 ग्राफ हमें दिया हुआ है बेटा, ठीक है। अब ये ग्राफ्स क्या कह रहा है कि इनिशियल द बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो बॉडी पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। इट एक्सेलरेट इंक्रीज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, ये एक्सेलरेट करती है और कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट होते फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी वापस जीरो पे आ जाती है, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, यानी कि बॉडी वापस रेस्ट में आ जाती है। ऐसी कोई सिचुएशन क्या होती है, व्हेन क्रिकेट बॉल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन ए क्रिकेट बॉल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी क्रिकेट बॉल है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है, ठीक है, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट हिट विद द बैट, जब बैट के साथ हिट करेगी, हिट विद, जैसे कि कोई फील्डर है जो बॉल क्रिकेट, वो जो बैटिंग कर रहा है उसको बॉल मारेगा तो बैट से उसको घुमाएगा, ठीक है, विद ए बैट, बैट के साथ उसको हिट करेगा फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए, टाइम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 is on your screen and this is also a graphical question. According to this graph, what is the question is saying कि that is according to figure, the xt plot a particle executing 1D simple हार्मोनिक मोशन, की कोई बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, हमें बताना है कि द साइन ऑफ पोजिशन, साइन बताने किस किस के, पोजिशन के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल्स, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जब टाइम हमारा 0.3 सेकेंड रहेगा, 1.2 सेकेंड रहेगा और 1.2 सेकेंड पे रहेगा, ये हमें बताना है। चलो करते हैं बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो फिगर क्या दे रखा है, चलो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। ऐसा कुछ दिया हुआ है और ग्राफ है हमारा XD ग्राफ, ओके। और ग्राफ्स में जो दे रखा है ये ऐसा कुछ दिया हुआ, ओके। ये 0, -1 एंड दिस इज -2, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारा टाइम दिया हुआ है। अब ये पूछ क्या रहा है कि हमें पोजीशन बतानी है, लॉस्ट टाइम और इनकी। चलो इन ऐसे चल, अब आपको पता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें हमारा एक्सेलरेशन होता है -ω²x, ठीक है। दैट इज, ये आपको जब हम आपको 10th यूनिट करवाएंगे ना बेटा, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स आपको पता है ये पोजीशन, और ये यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट में देखो टाइम, जब हमारा टाइम क्या है 0.3 सेकेंड, 3 केस पूछे हुए हैं ना इसमें, जब टाइम हमारा 0.3 सेकेंड है, ठीक है। तो चलो देखो
0.3, यानी कि जहाँ कहीं लगा लो आप 0.3। तो इस टाइम पे देखो क्या हो रहा है, जब अपना 0.3 सेकेंड है तो जो पोजीशन है वो बॉडी क्या है, नीचे की तरफ जा रही है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्स नेगेटिव हो जाएगा हमारा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, तो जो इसका स्लोप है वो भी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, नीचे की तरफ बन रहा है ना। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होता है, हमारी वेलोसिटी होती है, दैट इज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक्स भी नेगेटिव, हमारा वेलोसिटी भी नेगेटिव। ठीक है, बट अब ए जो निकाल लेंगे, क्योंकि ए क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो माइनस का और माइनस का एक्स क्या हो जाएंगे, प्लस का। तो हमारा एक्सेलरेशन इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका फर्स्ट केस रहेगा। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि टाइम कितना है, 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 1.2 सेकेंड का मतलब यहाँ कहीं, तो अब आप देखो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक्स टी ग्राफ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो एक्स भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, बट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब टाइम हमारा 1.2 रहेगा, एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बट ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रीजन मैंने आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया था बेटा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा पार्ट सी। उसमें टाइम कितना लिया है इसने, -1.2 सेकेंड। तो -1.2 सेकेंड मतलब इसकी बात कर रहा है, यानी कि यहाँ कहीं बात कर रहा है ना। तो आप यहाँ पे देखो बॉडी की पोजीशन किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है ना बॉडी। तो पोजीशन क्या हो गई, नेगेटिव। एक्स, ये देखो ये एक्स पॉजिटिव, तो ये एक्स नेगेटिव है ना हमारा, तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो बी भी नेगेटिव, बट ए क्या हो जाएगी, ये बॉडी कंटिन्यू क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव रहेगा, वी भी नेगेटिव रहेगा, बट जो ए है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज ऑन योर स्क्रीन बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ग्राफिकल ही है, हमें ग्राफ दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि एक्स टी ग्राफ है। ठीक है, वो किसी पार्टिकल का 1D मोशन फॉलो कर रहा है और 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो भी इसने कंडीशन दी हुई है उसके बिहाफ पे देखो इसने क्या बोला हुआ है कि देयर 3 डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन, इन विच इंटरवल ऑफ एवरेज स्पीड इज ग्रेटर एंड इन विच इंटरवल ऑफ एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट एंड इन विच इट इज लिस्ट। आपको बताने की एवरेज जो वेलोसिटी है कब हमारी ग्रेटर रहेगी और कब हमारी लिस्ट हो जाएगी, मतलब कब हमारी कम हो जाएगी, ये आपको बताना है। ओके, और इसका साइन भी दिया हुआ है हर एक इंटरवल में, इसका साइन भी दिया हुआ है हर एक इंटरवल में। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज सेंड टू अस। क्या ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ्स बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, हम इसको बनाते हैं ये। ठीक है, ये हमारा टाइम है और ये हमारा एक्स है, ये पोजीशन को शो करेगा, तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम इंटरवल दे रखा है, एक हमें ये वाला टाइम इंटरवल दे रखा है, उसके बाद हमें ये वाला टाइम इंटरवल दे रखा है। दिस इज थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। अब देखो क्या कर रहा है, वी नो दैट एवरेज स्पीड क्या होता है, जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है आपको बताओ। एवरेज स्पीड इन ए स्मॉल इंटरवल टाइम इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ठीक है, फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इंटरवल ऑफ टाइम हमारा क्या है, छोटा है, इंटरवल ऑफ टाइम अगर छोटा है तो जो वी एवरेज हमारा जो स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाती है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ के स्लोप के इक्वल हो जाता है।
ठीक है। तो एवरेज स्पीड द ग्रेटेस्ट, तो आप बताओ एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट कहाँ, तो देखो यहाँ पे इसका स्लोप निकालो आप, एक्स टी ग्राफ का तो स्मॉल स्लोप है, यहाँ पे अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, और यहाँ पे इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आप बताओ जहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम हमें चेक करना पड़ेगा ना, तो इंटरवल ऑफ टाइम देखो स्लोप कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो द एवरेज स्पीड इज द ग्रेटेस्ट इन द इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट रहेगी, इस इंटरवल में क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट रहेगी, ठीक है। और सबसे लिस्ट आपको अलग से दिखाई दे रहा है इंटरवल 2, इस वाले 2 में, इसमें क्या रहेगी आपकी एवरेज स्पीड लिस्ट रहेगी, सबसे कम रहेगी, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज पॉजिटिव हियर, ठीक है। तो आप इसको करते हैं, जो ग्रेटेस्ट है वो कहाँ रहेगी, इन थर्ड इंटरवल, थर्ड वाले में क्यों रहेगी बेटा, बिकॉज थर्ड वाले में हमारी जो बिकॉज स्लोप इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट है, स्लोप हमारा बड़ा है, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड है वो इंटरवल 3 में मतलब ग्रेटेस्ट क्यों रही है, बिकॉज स्पीड इज नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज इसमें स्पीड क्या है हमारी नेगेटिव रही ना, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसके अंदर देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, क्योंकि जो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो भी क्या है, स्लोप भी क्या है हमारा नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो इस वजह से इसका पूरा स्पीड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो थर्ड वाला है, सेकंड में क्या है हमारा लिस्ट है ना, लिस्ट क्यों रहा है, क्योंकि जो स्लोप है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, जो स्लोप है वो पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से इंटरवल में, 1 और 2 में, तो 1 और 2 इंटरवल है, उनमें हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा स्लोप 2 क्या रहेगा, इंटरवल 2 क्या रहेगा, सबसे लिस्ट रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। ये भी एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ओके, पार्टिकल इन 1D मोशन, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन, अलग अलग इंटरवल दिखाई गए हैं इसमें, इन विच इंटरवल द एवरेज एक्सेलेरेशन ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड, हमें एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है और उसका ये बताना है ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड कहाँ रहेगा। अब इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट, एक बार ये भी बताना है कि एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट कहाँ रहेगी। आप पॉजिटिव डायरेक्शन एट द कंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करें, साइन ऑफ यू एंड ए, ठीक है, यू एंड ए के साइन आपको वहाँ से पता चलेंगे। अब आपको एक्सेलेरेशन बताना है ABCD इन पॉइंट्स के ऊपर। चलो बेटा इसको क्वेश्चन को करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम ग्राफ बनाते हैं। पहले स्पीड टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है और बॉडी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ए है, दिस इज द फर्स्ट इंटरवल and this is our point B and this is our second interval, okay, and this is the point C and this is the point D and this is our third interval। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। अब वी नो दैट जो एवरेज एक्सेलेरेशन होता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एवरेज एक्सेलेरेशन होता है वो किसके होगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, बट एक इसके लिए होता है फॉर स्मॉल टाइम ओनली, स्मॉल इंटरवल ओनली, स्मॉल इंटरवल के लिए ही होता है बेटा ये। चलो इसको हम स्टडी करते हैं। स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज मैक्सिमम, तो आप ये बताओ स्लोप ऑफ VT ग्राफ मैक्सिमम कहाँ है। मैक्सिमम आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि ये मैक्सिमम है इंटरवल 2 में, 2 वाले इंटरवल में क्या है ये मैक्सिमम है, ठीक है। एंड एज कम्पेयर टू अदर इंटरवल 1 and 3, तो हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन, तो जो मैग्नीट्यूड रहेगा एक्सेलेरेशन का वो कहाँ ज़्यादा रहेगा, इंटरवल 2 में रहेगा, ओके। एवरेज स्पीड भी कहाँ अपनी ग्रेटर रहेगी, वो रहेगी आपकी इंटरवल 3 में। जो आपकी एवरेज स्पीड है
एवरेज स्पीड वो कहाँ रहेगी, इज ग्रेटर इन इंटरवल 3, इंटरवल 3 में रहेगी आपकी। ओके, अब इसके रीजन्स हम आपको साथ साथ एक्सप्लेन, पहले मैं आपको ये इंटरवल्स ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इन इंटरवल 1, फर्स्ट वाले इंटरवल में देखो बेटा, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज पॉजिटिव। देखो बॉडी ऊपर की तरफ वो कर रही है ना, तो यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। इसमें जो हमारा स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर। सो एक्सेलेरेशन तो ए भी यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ए भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इस वाले स्लोप में। ठीक है, ए भी पॉजिटिव रहेगा। सो स्पीड, जो स्पीड होएगी, स्पीड यू इज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो भी क्या रहेगी, यू भी क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव। बॉडी कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब हम इंटरवल, ये हमारे इंटरवल 1 की बात हुई। इंटरवल 1, तो 1 में हमने क्या क्या देखा, स्लोप भी पॉजिटिव है हमारा। ओके, ए भी पॉजिटिव है हमारा और यू भी हमारा पॉजिटिव है। अब हम इंटरवल 2 की बात करते हैं। तो इंटरवल 2 में क्या हो रहा है, तो देखो बेटा इंटरवल 2 में की बात करते हैं हम। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इंटरवल 2 में क्या हो रहा है बेटा, स्लोप तो हमारा क्या है, नेगेटिव है इंटरवल 2 में। ठीक है, क्योंकि देखो बॉडी जो इंटरवल 2 की बात कर रहे हैं तो बॉडी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये हमारा मान लो फर्स्ट इंटरवल था, सेकंड। तो इस वाले की अगर हम बात करें बी की, तो बॉडी नीचे आ रही है। ठीक है, तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन भी इस वजह से, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो डी एक्सेलेरेट हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो स्पीड इज पॉजिटिव, बिकॉज स्पीड कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी पॉजिटिव। अब इंटरवल 3 की बात करते हैं। 3 में क्या हो रहा है, तो बेटा इंटरवल 3 को देखो आप, ये यहाँ पे ये इंटरवल 3 जो डी वाला पार्ट है, ये क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ध्यान पे देखो, यहाँ पे ये किसके एक्सिस है, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ना। ठीक है, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, तो जो ग्राफ है वो क्या है, वीटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वीटी ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन, तो अब बताओ अगर हमारा ये वीटी ग्राफ ही पैरेलल है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा हमारा 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन 0। सो v इज पॉजिटिव एट हियर। ओके, अब ए बी सी डी पॉइंट पे देखो आप, एट पॉइंट ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट्स पे देखो बेटा, इन चारों पॉइंट्स पे जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर स्पेशली हम इन पॉइंट्स की बात करें, ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ए बी सी, तो यहाँ पे ये चारों ग्राफ्स पे देखो, तो वी टी ग्राफ है वो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, सो एक्सेलेरेशन इज 0 एट ऑल पॉइंट्स। सो ए इज इक्वल टू 0 एट ऑल दीज पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स पे ए हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके बेटा।